Hello everyone. Welcome back to one more online session of UGC NET GSET for specially commerce subject. In the last session, we have done discussion of issue of shares at par, at premium, at discount. We have done some MCQs which were asked in the previous examinations. Today we will do some revision and then we will move to the MCQs. मतलब ये जो शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन है इस चैप्टर से आपके कैसे MCQ आ सकते हैं. So look at here. Share capital is the amount a company can collect from general public at the time of starting the company. Share is a small part of share capital. ये हम कर चुके हैं. Shares can be issued at par, at premium, at discount. When some shareholders fail to pay amount on any call, it is called as call scenarios. In balance sheet we show paid up capital as final balance of capital. मतलब balance sheet में जो हम capital show करेंगे वो कौन सी capital रहेगी? Paid up capital. After deducting call scenarios from called up capital. At the same time, we have to focus on some important aspects of securities premium. Securities premium, Section 52 as per Companies Act 2013. Securities premium must be shown under the head reserves and surplus in balance sheet on liability side. And it can be utilized for issuing fully paid up bonus shares, for writing off preliminary expense, for writing off discount, and for providing premium on redemption of redeemable preference shares. ये आपको याद रखना है. For discount, Section 53 is applicable. It is shown on asset side in balance sheet as miscellaneous expenditure. And these are some conditions you need to remember for डिस्काउंट जहां से आपके MCQ आ सकते हैं. क्लियर? देखो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो सीरियस प्रिपरेशन करनी है. ऐसा नहीं है कि चलो ऑनलाइन सेशन देख लिया हो गया. नहीं, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑलरेडी देयर. यू कैन सर्च UGC NET विथ Dr. DMR ऑन टेलीग्राम. वहां पे भी आपके पास अवेलेबल है. लेट्स लुक एट सम MCQs. कैसे कैसे MCQs चैप्टर से आ सकते हैं. रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स पहले भी हम कर चुके हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट बिगिनिंग. नो. ओवर सब्सक्राइब कैपिटल. नो. अंडर सब्सक्राइब कैपिटल. नो. Reserve share capital is a portion of uncalled capital to be called at the time of liquidation. मतलब liquidation के टाइम अगर आप किसी कैपिटल को मंगवा सकते हो, so that capital is reserve. आपने बचा के रखी है वो कैपिटल किसके लिए? लिक्विडेशन के लिए. So the right answer is reserve capital is portion of uncalled capital to be called at the time of liquidation. Next question. When full amount is due on any call but it is not received, then shortfall is debited to. मतलब नॉन फेलियर है, पेमेंट नहीं कर रहा है कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पे, तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा वो हमें पता है. दैट इज एडजस्टेड, दैट इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स. सो द राइट आंसर इज कॉल्स इन एरियर्स. देखो अगर आप कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो आपको दूसरे ऑप्शंस देखने की नौबत ही नहीं आएगी. We are not supposed to look at any other option. Strict ये ऑप्शन सही है. Moving further, the difference between subscribed capital and called up capital is uncalled. Subscribed है, called up है, तो उसके बीच में क्या रहेगी? Uncalled capital रहेगी जो कंपनी ने मंगवाई नहीं है. Which statement is issued before the issue of shares to the public? मतलब जब शेयर्स इश्यू हो रहा है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो पब्लिक को देने पड़ेंगे? सो वी हैव ऑप्शन 1 प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो आपको याद रखना है जब शेयर्स इश्यू होंगे तो ये तीनों
पब्लिक को दिखाना है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। इट इज पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्यों है? जितने भी जो भी पब्लिक है वो शेयर्स सब्सक्राइब करेगी, उस टाइम पे वो अप्लाई करेंगे। सो दैट्स व्हाई शेयर एप्लीकेशन इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर? मूविंग फर्दर, रिजर्व कैपिटल। देखो यहां पे दूसरी बार क्वेश्चन आया। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व प्रॉफिट, पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। So the right answer is reserve capital is a part of subscribed uncalled capital, which is called up at the time of liquidation. Moving further, capital include in the liability of a company is called, मतलब जो भी liability side हम capital लिखेंगे वो final amount as a liability कौन से capital लिखेंगे? Authorized? No. Issued? No. Subscribed? No. Paid up capital? Yes. ये तीनों हम लिखते हैं पर उसकी बैलेंस एज अ लायबिलिटी काउंट नहीं होगी। सो पेड अप कैपिटल इज टू बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज एडेड टू कैपिटल, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन ऑन असेट साइड, शोन एज द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। नो। सो द राइट आंसर फॉर द कॉल्स इन एरियर्स, जो भी हमारी पेड अप कैपिटल होगी, कॉल्ड अप कैपिटल में से हम शेयर कैपिटल, मतलब जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से हम कॉल्स इन एरियर्स डिडक्ट करेंगे। वंस वी डिडक्ट कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, वी विल गेट पेड अप कैपिटल। अंडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इश्यू ओनली इक्विटी, ओनली प्रेफरेंस एंड इक्विटी, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। देखो आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही इजी एमसीक्यूज हैं, पर बहुत ही अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की है, अच्छी तरह से आपने कंसेप्ट समझे, इसीलिए आपको जो एमसीक्यू है वो इजी लग रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड इज, मैक्सिमम, मिनिमम 6% है, मैक्सिमम 12%। क्लियर? डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज पे नहीं होगा, इश्यूड पे भी नहीं, कॉल्ड अप पे भी नहीं, जो पेड अप कैपिटल होगा उस पे डिविडेंड दिया जाएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। वो हमने आगे किया, हम क्या डिडक्ट करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। सो द राइट ऑप्शन इज बी, कॉल्स इन एरियर्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ये हम आगे वाले सेशन में भी कर चुके हैं। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम, the amount of premium may be received by the company on application, allotment, call money. So the answer is all of the above. Securities premium cannot be applied for paying dividend to the members. ये question repeat हुआ है. So in examination you will have this kind of practical exam, MCQs, multiple choice questions. In the next session, we will do forfeiture. In the last session, we have done issue of share capital 2, issue of shares at par, at premium, at discount. Kindly watch all the sessions for better understanding. अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चैप्टर के MCQs में. So till that, stay at home, stay safe. Take care of yourself and your family. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.